Dear brothers, जैसा कि वन ऑफ द होस्ट PM सलाम साहब ने आपको ब्रीफ किया है, ये नेशनल लेवल का 2 days कन्वेंशन कॉल्ड द नेम नुमाइंदा इजलास उम्मत। इसमें इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ की पर्सनालिटीज़ को जमा किया था। इसमें जैसा कि इस्लाम साहब ने ब्रीफ किया है, एक तरफ हमारे कंट्री की सोशल इकोनॉमिकल सिचुएशन डेंजरस होती जा रही है, दूसरी तरफ चाइना की तरफ आपने इशारा किया कि हमारे सर पर सवार है। कंट्री की लीडरशिप इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की बजाय, चाइना को फेस करने की बजाय, उससे आंखें बंद करके और कंट्री की सोसाइटी के अंदर डिवाइड करने और अपनी चीप पॉलिटिक्स के जरिए से सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए जो गलीज और चीप हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो कंट्री के बारे में, कंट्री के अवाम के बारे में, कंट्री के इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करें और कंट्री और सोसाइटी के इश्यूज़ को मीडिया के ज़रिए से इस मुल्क की पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाया जाए और इन हालात में किस तरह से पीस, कम्युनल हार्मनी, जस्टिस एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के साथ साथ हम सारे इश्यूज़ को किस तरह से टैकल कर सकें, इसी के लिए ये 2 दिन का कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था। और उसके बाद आज आप दोस्तों को हमने इनवाइट किया है कि जो कुछ यहाँ 2 दिन का जो डिस्कशन हुआ है जिन इश्यूज़ पर, वो आप लोगों के ज़रिए से इस देश की जनता के सामने लाए जाएँ। ये बेसिक 2 इश्यूज़ जो डिस्कस हुए हैं और उसके नतीजे में जो रिजोल्यूशन आए हैं, वो रिजोल्यूशंस और डिक्लेरेशन जो है आपके सामने डॉक्टर अली साहब करके सुनाए। Most of us feel and agree that our country is passing through a difficult and special phase. With regard to the economic hardships faced by the common people, even the middle class, that is one aspect of the situation. The global hunger index of 2020, India's position was 94 out of 107. Some of our ministers claim that India is becoming a super economic power, but unfortunately and sadly, the position in this 2021 global hunger index, it has gone to 101 out of perhaps 106. It's a very sad situation. And regarding the activities of ED, Enforcement Department, aberrations had been there even for the last many years. Even the previous regimes, it was not free from aberrations and misuse and abuse. But now the situation is very glaring for everyone to see, for all the world to see, that it is perhaps 100 times or 200 times graver misuse against political opponents, against critics, against rebels. And regarding the community, Muslim community, the whole world can see that the Muslim community has been targeted on many ways. And the declarations for genocide is as if it is a free hand is given to the RSS related organizations.
nothing serious is happening. It's a very sad situation. And from north to south, Muslim individuals like Kaleem Siddiqui Sahab, like Umar Ghodam, like Zakir Naik, and many organizations are agencies are behind, and a call is often made, a case is often, argument is made that such and such organizations has to be banned. Today it may be organization one of the Muslim community. Tomorrow it may be next, second, third. So it's a very grave situation, and a atmosphere of fear, Islamophobia is being created. And the condition of the country in many respects is very sad. We feel sad about our country. When China is making preparations for a war, our land is being grabbed by China. Even in the last 2 years, mutually agreed LOC has been violated. Nothing serious is happening. And further preparations are being made by bigger war. It is not our observation, it is observation of people like Praveen Sahini, who is coming with a book, The Last War. Some of you may be aware of that. And it's very critical observations are made. We are sad about that. China has bad intentions. China is not motivated by the international laws and principles. We have to check them. We have to mobilize opinion. But instead of doing that, instead of confronting China, a division is being created within the communities. And these are the issues we had. This is the occasion. If we don't discuss and deliberate, take serious notice of all these things, then it will be too late. That's why from all over India, many ulama, Muslim intellectuals and Muslim academicians came who are experts in many of their special fields, and we had deliberations. We have come up with certain resolutions, and it will be, unfortunately, they are not being typed because of the time pressure, and it will be made available to you. For the time being, these resolutions will be read by Dr. Anisa. 2 रोज़ा इजलास यहाँ पर किया था 20-21 अगस्त को। यहाँ पर पूरे मुल्क से डेलीगेट्स आए थे, अलग अलग तंजीमों के, अलग अलग इलाक़ों के और मुख्तलिफ़ इदारों के भी लोग थे। और जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है उस पर सब लोगों ने डिस्कशन किया। मुख्तलिफ़ चीज़ें समाजी सतह पर भी, तालीमी सतह पर भी, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के सामने, उन सब को यहाँ पर डिस्कस किया गया। और कुछ चीज़ें रिज़ॉल्व की गई हैं, वो रिज़ोल्यूशन की शक्ल में हैं, लेकिन अभी वो फेयर ड्राफ्ट नहीं हो पाया है, तो हम ज़ुबानी तौर पर गुफ्तगू कर लेंगे और व्हाट्सएप कर देंगे बाद में उसकी जो कॉपी है। तो मैं पहले आप लोगों के सामने ख़िताब करने के लिए ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी में सलाम साहब से कहता हूँ, ये जो 2 रोज़ा इजलास था 20-21 अगस्त का, उसको कुछ लोगों की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसमें उसके जो होस्ट थे वो हमारे PMA सलाम साहब थे, ये साइंटिस्ट हैं और सेंटर फॉर फिज़िक्स ऑफ स्पेस एंड टाइम उसके चेयरमैन हैं। और दूसरे होस्ट थे प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी, और तीसरे होस्ट थे अताउर रहमान वजदी साहब, उनकी तबीयत ख़राब है वो इसलिए इसमें शरीक नहीं हो पाए थे। चौथे थे हमारे मौलाना फरीदुद्दीन साहब कासमी, वो देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। पाँचवें हमारे होस्ट थे ये अबू ज़फ़र हसन नदवी साहब, वो मुंबई से तशरीफ़ लाए थे, वो अभी भी यहाँ होटल में मौजूद हैं। और छठे जो होस्ट थे इसके वो हमारे मोहतरम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, ऑर्गेनाइजेशन जो है वहदत इस्लामी, उसके इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। तो इन लोगों की दावत पर मुख्तलिफ़ तंजीमों और इदारों के लोग यहाँ पर जमा हुए थे और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हम लोगों ने डिस्कस किया, गौर खोज किया, मशवरा किया, और कुछ चीज़ें हम लोगों ने रिजोल्यूशन पढ़ के सुनाए या ऐसे ही उसको सुना। उसके पॉइंट्स थोड़ा आसान था उसको रखना। अब आप समझा दीजिए।
जो रिजोल्यूशन सबसे आखिर में लोगों के मशवरे से लिखा गया है, हेलो, उसमें पहली चीज़ तो ये लोगों का एहसास था कि इस मुल्क में और पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन जो हमले होते रहते हैं, तो इस पर पूरे हाउस को तशवीश है और इन हरकतों की हम मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके कानून के मुताबिक जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसमें तसावली नहीं उन्हें करना चाहिए हुकूमत को। और इसको बहरहाल मुसलमान के लिए ये काबिल कबूल नहीं है और हिंदुस्तान में जो समाजी रवादारी है उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ये लोग जो करते हैं दर हकीकत हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए इस हाउस को बहुत ही इस पर तशवीश का इजहार किया है। दर हकीकत वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। दूसरी बात, जो मुसलमानों के तशख़्ख़ुस और उनके शायर हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, कब्रिस्तानों पर हमले किए जा रहे हैं, तो इस पर भी इस हाउस ने तशवीश का इजहार किया है। उसके साथ साथ मुसलमानों की लिंचिंग और उनके कत्लेआम के जो ऐलानात होते हैं तो उनको कानून के दायरे में लाने की कोशिश नहीं की जाती और उनके ताल्लुक़ से चश्मपोशी की जा रही है, तो ये भी एक तशवीश की बात है। और जब ऐसे हालात, जो इसको अल्फाज में यहाँ इसमें लिखा गया है कि जब लॉ एंड ऑर्डर नाकाम कर दिया जाए, जब इंसाफ का निज़ाम लोगों को जीने का हक़ और दीगर बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत में अदम दिलचस्पी का सबूत फराहम करे और जब फिस्ताई ताकतों को मुकम्मल छूट दे दी जाए, तो मुसलमानों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करें। ये उनकी ये बुनियादी हक़ है कि जीने का हक़ है और उसके लिए लोग कोशिश करें। इसके साथ साथ ये इजलास मुल्क में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर भी तशवीश का इजहार करता है। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनसूबाबंद तरीक़े से नफ़रत का माहौल फ़रोग़ दिया जा रहा है, ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये इजलास तय करता है कि इस सिलसिले में चंद अफराद पर मुश्तमिल एक निगरान कमेटी तश्कील दी जाए जो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए एक मुनासिब लाहे अमल और प्रोग्राम तरतीब दे। इसके साथ साथ ये बात आई इजलास में कि ये इजलास नस्ल नौ की इस्लामी बुनियादों पर तालीम और तरबियत के सिलसिले में अपनी गहरी फ़िक्रमंदी का इजहार करता है और इस अज़्म का इजहार करता है कि इस ताल्लुक़ से मुनासिब अमली इक़दाम किए जाएंगे। एक और अपील की है इस इजलास में कि ये इजलास उम्मत के बाशऊर और फ़िक्रमंद लोगों से अपील करता है कि मकामी सतह पर राब्ता कमेटी की तश्कील करने की कोशिश करें और उम्मत के तमाम उमूर व मसाइल इज्तमाइयत और इत्तेहाद के साथ अंजाम देने की कोशिश करें। सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से इस इजलास ने ये रिज़ॉल्व किया है कि ये इजलास सोशल मीडिया के ज़रिए इस्लाम मुखालिफ मवाद की तरवीज व इशात पर अपनी तशवीश का इजहार करता है। इसका जवाब देने की मुनासिब तदबीर मुसलमानों को करनी चाहिए। ये इजलास उम्मत मुस्लिमा से अपील करता है कि मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की खातिर बाज़ मुस्लिम दुश्मन एजेंसियों की मुसलसल सरगर्मियों का संजीदगी से नोटिस ले। ऐसे में हर सतह पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत दोचंद हो जाती है। ये इजलास उलमा, मुस्लिम दानिश्वरों और तंजीमों से मुतालबा करता है कि अपने दाखिली इख्तलाफात को अंगेज़ करते हुए मौजूदा इस्लाम मुखालिफ चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए दीगर मज़लूम तबक़ात को साथ लेकर सबबस्ता होकर काम करें। एक और चीज़ जो इस इजलास में आई, ये इजलास बाज़ मीडिया और सरकारी एजेंसियों के ज़रिए मुस्लिम शख्सियात, इदारों, तंजीमों, बिलखुसूस PFI
کے خلاف پروپیگنڈا مہم کے ذریعے بدنام کرنے اور ان پر پابندیاں عائد کرنے کے منصوبوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ یہ اجلاس شخصیات میں بھی اس بات کا تشویش کا اظہار کیا اجلاس نے کہ مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم اور جو دوسرے افراد ہیں جن کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے ایک منصوبہ طریقے سے، ہم اس تعلق سے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعلق سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے تعلق سے جو ریزولوشن پاس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اجلاس ملک کی تمام خواتین کی جان، عزت و آبرو کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری سمجھتا ہے۔ نربھیا معاملہ میں بھی ہمیں اس بات کا احساس ہو چکا ہے، مگر اب دوہرا معیار اپناتے ہوئے بلقیس بانو کے مجرمین کو رہا کیا جانا دنیا بھر کی خواتین کی سب سے بڑی توہین اور انہیں دیا گیا سب سے بڑا صدمہ ہے۔ یہ اجلاس میڈیا کے اس طبقے کی سراہنا کرتا ہے جو ایسے ناگفتہ بہ حالات میں بھی انصاف کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں اور حق گوئی سے کام لیتے ہیں۔ یہ تجاویز تھی اور ریزولوشن کے نکات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھے۔